अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबका। बेटा आई एम योर मेंटर ऑफ समझट। टुडे इज़ आवर लेक्चर नंबर 10। टुडे वी विल स्टडी अबाउट ऑन द टॉपिक ऑफ पीएच स्केल। बेटा इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट पीएच स्केल, how it is introduced, who introduced it, what is the definition of pH scale, how can we calculate the pH of a scale. We will derive the mathematical expression of pH scale in this topic, and we will also discuss the different uses of pH scale. First of all, what is the introduction of pH scale? Beta, in 1909 a scientist Sorensen introduced the pH scale. According to Sorensen, pH scale is actually a scale which is used to specify how acidic or basic a water-based solution is. According to Sorensen, acidic और बेसिक वाटर बेस्ड सॉल्यूशन की स्पेसिफिसिटी को डिटर्मिन करने के लिए हम पीएच स्केल को यूज़ करते हैं. अकॉर्डिंग टू सोरेनसन, acidic solutions having pH lower than normal pH value and basic solutions have pH value higher. According to Sorensen, pure water is actually a neutral. It has neither acidic or nor basic nature. So the pH of pure water will be neutral, or we can say that the pH of pure water will be 7. But according to Sorensen, what is pH scale? We can define the pH scale like that: the negative logarithm of molar concentration of hydrogen ions. कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, मींस कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन आयंस की मोलर कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, अगर हम उसका नेगेटिव लॉगरिथम ले लें तो बेटा जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसे हम क्या कहेंगे? पीएच स्केल. सो वी कैन राइट द इक्वेशन फॉर पीएच स्केल लाइक दैट: पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन. हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉगरिथम जब हम लेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? पीएच वैल्यू या पीएच स्केल हम इसे कहेंगे. हेयर बेटा पी स्टैंड्स फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस. व्हाट इज मेंट बाय पी? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस. एंड A stand for hydrogen ions. So we can say that pH is actually the concentration, molar concentration of hydrogen ions. Beta, we know that a scale is developed whenever we take the molar concentration of hydrogen ions. So this scale is called pH scale. Now we will calculate the pH scale. Yeah, we will derive the mathematical expression of pH scale. First of all, what is the basis of pH scale? बेटा जब भी हमने pH scale को derive करना है तो डेफिनेटली उसकी कोई स्टैंडर्ड चीज़ होनी चाहिए या कोई बेसिस होनी चाहिए जिस पे की बेस पे हमने इसे स्टार्ट करना है. तो प्योर वाटर इज़ टेकन एज ए बेसिस फॉर pH scale. रीज़न इज़ दैट in pure water the concentration of H positive ions and the concentration of OH negative ions, means acidic concentration and basic concentration is equal. That's why we take pure water as a basis of pH scale. Now the second point is water is a weak electrolyte. We know that water being a weak electrolyte, water being a weak electrolyte self dissociate और self ionize. The reason is that ये वीक होने की वजह से इजीली अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन इतना सारा कन्वर्ट नहीं होता. वेरी स्लाइट अमाउंट ऑफ इट इज़ कन्वर्टेड. वी कैन से डैट अबाउट 10⁻⁻7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, वट एवर, ग्राम पर, मोस्टली ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अमाउंट ऑफ इट इज़ dissociate. Now we will use this pure water as a basis for the calculation of pH scale या for the derivation of pH scale. Now we will move towards the mathematical expression of pH scale. Beta, we know that we have taken the pure water as a standard for pH scale. We can write the equation of pH scale. We can write the equation of water like that: H2O changes into H positive ions प्लस OH नेगेटिव आयंस. इसे बेटा हम रिमूव कर दें. ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है. हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस की फॉर्म में. बेटा ये डेरिवेशन है या इक्वेशन हम इसे कह लेते हैं, जो हम यूज़ करेंगे वाटर की सेल्फ डिसोसिएशन के लिए. हमने वाटर को एज ए स्टैंडर्ड लिया तो वाटर की डिसोसिएशन में H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस बनेंगे. अब हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव कर लेते हैं. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव कैसे किया जाता है बेटा?
वी नो डैट Kc इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स क्या है इसमें, इस रिएक्शन में हमारे पास प्रोडक्ट कह रहे हैं हम इसे H पॉजिटिव आयंस को और OH नेगेटिव आयंस को। तो H पॉजिटिव आयंस प्लस का साइन ही आएगा बेटा, इसमें हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लेते हैं। OH नेगेटिव आयंस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। सो वी कैन एक्सप्लेन द equilibrium constant expression of water is Kc equal to H positive, concentration of H positive ions, concentration of OH negative ions, and the divided by concentration of water. This is our equation number 1. Now we will move towards next step. Beta, we will arrange the equation number 1. By rearranging the equation number 1, the equation will be like that: Kc equal concentration of H2O equal to concentration of H positive ions, concentration of OH negative ion. The reason is that बेटा वाटर एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि बहुत थोड़ी अमाउंट इसकी डिसोसिएट हुई थी। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत कम H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस बने हैं, तो हम उसे एज ए कांस्टेंट ले लेते हैं। इसलिए मैंने इसे रीअरेंज कर लिया, Kc कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इक्वल टू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. नाउ बेटा, द product of Kc and H2 is also called another constant. This constant is actually called ionic product constant. Ionic product constant of water. आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर Kc और H2 की जो कंसंट्रेशन है उसके प्रोडक्ट को, उसकी मल्टीप्लिकेशन को हम क्या कहेंगे, आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर। बेटा इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Kw से, ठीक है। सो वी कैन से डैट Kc एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू Kw. सो वी विल राइट द इक्वेशन नंबर 2 लाइक दैट: Kw इक्वल, बाकी क्या था हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस and the concentration of OH negative ions. So we can explain the ionic product constant of water like that: concentration of H positive ions and the concentration of OH negative ions in water at a particular temperature is called the ionic product constant of water and it is represented by Kw. जब कभी कोई H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन जो कि वाटर में प्रेजेंट है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, तो उसका जो प्रोडक्ट है उसे हम क्या कहेंगे, आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर। अब मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। रीज़न क्या है, अगर टेम्परेचर हाई होगा तो आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट भी हाई होगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट भी कम होगा। अगर हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस की इंक्रीज़ हो जाएगी। रीज़न क्या है, जब हम बेटा टेम्परेचर को हाई करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या है, इंक्रीज़ हो जाती है। जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो वो ना सिर्फ अपने मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करेंगे बल्कि जिस कंटेनर में वो प्रेजेंट है उसके वॉल से भी कोलाइड करेंगे। जब कोलाइजन इंक्रीज़ होगी तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाएगी और ज़्यादा। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी तो मॉलिक्यूल्स जो है आपस में डिसोसिएट हो जाएंगे, अपने H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस बनाएंगे। सो वी कैन से दैट एट हाई टेम्परेचर द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस इज इंक्रीजेज एंड एट लो टेम्परेचर द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस डिक्रीजेज। द टेम्परेचर वैल्यू ऑफ Kw कैन बी टेकन एज, बेटा अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम K की वैल्यू देखें तो वो 0.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ है। अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखें तो 0.31 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ है। अगर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखें तो इसकी वैल्यू है 1.00 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। अगर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे Kw की वैल्यू देखें तो 7.50 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ है। लेकिन बेटा हम मोस्टली रिएक्शंस 25 डिग्री मीन्स रूम टेम्परेचर पे करते हैं, तो हम रूम टेम्परेचर की वैल्यू को एज ए स्टैंडर्ड लेंगे। द वैल्यू ऑफ Kw एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ 1.00 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। हम इस वैल्यू को मोलर कहेंगे, हम इस वैल्यू को एज ए स्टैंडर्ड लेंगे और इसी से आगे हम अपनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को ड्राइव करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं बेटा। हमने क्या किया था, हमने पीछे वैल्यू ली थी एक जिसमें हमने मैथमेटिकली इसे ड्राइव किया था, जिसमें हमने लिया था Kw इक्वल टू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस
मीन्स हमने क्या किया था, KW है, KW इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस एंड द कंसनट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस। हमने क्या कहा है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर KW की वैल्यू क्या हो गई थी, 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14। तो हम इस वैल्यू को इसमें पुट कर सकते हैं लाइक दैट के 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14 इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस एंड द कंसनट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस। ये अब हमारे पास आ गई है इक्वेशन नंबर, या इसे हम इक्वेशन नंबर 2A कह लेते हैं, जो कि अभी हमने थर्ड नई इक्वेशन बनाई इसकी। अब हम इस इक्वेशन को आगे फर्दर ड्राइव करेंगे। बेटा हम जानते हैं कि हमारे पास जो प्योर वाटर है वो न्यूट्रल फॉर्म में है, डेफिनेटली न्यूट्रल है, तो इसमें H पॉजिटिव आयंस की कंसनट्रेशन और OH नेगेटिव आयंस की कंसनट्रेशन इक्वल है। अगर एक H पॉजिटिव है तो दूसरा OH नेगेटिव जो है वो भी एक है। अगर दो हाइड्रोजन आयंस हैं, दो ही OH नेगेटिव आयंस हैं, मतलब दोनों की अमाउंट जो है वो इक्वल है। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम लोग लेंगे इसे एज ए स्टैंडर्ड और हम ये कंसीडर करेंगे जो हमारे पास कंपाउंड है, मीन्स वाटर जो है उसमें कंसनट्रेशन इक्वल होने की वजह से दोनों की वैल्यूज़ हम इक्वल ले लेते हैं। लाइक अगर मैं कह रही हूँ एक हाइड्रोजन आयन है तो दूसरा OH नेगेटिव आयन भी उतना ही है, तो हमने फ़र्ज़ किया दोनों सेम ही हो गए, मतलब दोनों की वैल्यू हमने कहा था H पॉजिटिव और OH नेगेटिव इक्वल है। यही कहा ना, एक हाइड्रोजन है एक ही OH नेगेटिव है, तो एक ये। तो अगर मैं H पॉजिटिव की जगह OH नेगेटिव की जगह पे H पॉजिटिव लिख लूँ तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसी तरह से अगर मैं OH नेगेटिव की कंसनट्रेशन को इक्वल कर दूं OH नेगेटिव की कंसनट्रेशन में, तो कोई डिफरेंस नहीं है, जो कि दोनों की वैल्यूज़ तो सेम है। तो बेटा हम इस वैल्यू को आगे फर्दर ड्राइव करने के लिए यूज़ करेंगे। अब हम इस वैल्यू को पुट करते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 2A में। हमने क्या कहा था, H पॉजिटिव इक्वल टू H पॉजिटिव हो गया, तो हम यहाँ पे OH नेगेटिव की जगह पे H पॉजिटिव की वैल्यू को पुट कर देंगे। 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14 इक्वल टू concentration of H positive and the concentration of H positive। अब H पॉजिटिव हो गया तो क्या हम कहेंगे, कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव 2 है तो स्केयर 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14 वैसे ही लिख देंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, अब हमारे पास जो वैल्यू है 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14 में आई है, तो बहुत ही छोटी वैल्यू है। जब हमने छोटी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना होता है तो बेटा वो हमारे लिए क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट है। स्पेशली जो माइनस में वैल्यूज़ हैं उन्हें डिटर्मिन करना डिफ़िकल्ट होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, उसको डिटर्मिन करने के लिए हम मोस्टली क्या करते हैं, उसका एंटी लॉग लेते हैं। एंटी लॉग लेने से पहले बेटा मैं यहाँ पे स्केयर रूट लूँगी ताकि इसकी जो स्केयर वाली वैल्यू है वो ख़त्म हो जाए। मीन्स H पॉजिटिव कंसनट्रेशन स्केयर अंडर रूट ले लेते हैं इस साइड का भी और दूसरी साइड का भी अंडर रूट ले लेते हैं। 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14 ये एक दूसरे से कैंसिल। कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस क्या हो जाएगी हमारे पास, 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 14 का हाफ 7 हो जाएगा स्क्वायर रूट की वजह से। अब हमारे पास 7 में वैल्यू फिर भी छोटी है तो हम क्या करेंगे, इसका एंटी लॉग लेंगे, मतलब अपना न्यूमेरिकल सिस्टम ड्राइव करेंगे ताकि हमारे पास वैल्यू जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू आए, ताकि हमारे पास वैल्यू की अमाउंट कम ना हो, माइनस में ना हो, पॉजिटिव वैल्यू में हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इस साइड का नेगेटिव लॉगरिथम ले लेंगे बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस इक्वल टू माइनस लॉग 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 ये आ गए हमारे पास। हम जानते हैं माइनस, बेटा हम जानते हैं जो हमारे पास माइनस लॉग है, ठीक है, माइनस लॉग के लिए हम P का वर्ड यूज़ करते हैं। हमने यही कहा था पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन P। सो हम माइनस लॉग की जगह पे यहाँ पे P लिख लेंगे। P कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, तो मैं इसे जस्ट H लिख लेती हूँ, कंसंट्रेशन हम वर्ड स्किप कर देते हैं। यहाँ पे आगे आ जाता है माइनस लॉग ये इसके साथ भी है, ये इसके साथ भी है 1.0। आपको पता है जब मल्टीप्लिकेशन का साइन आए तो हम पॉजिटिव लिखते हैं। अब माइनस लॉग इसके साथ माइनस लॉग 10⁻⁻7 इसको हम कर लेते हैं कैलकुलेट। हमें पता होना चाहिए बेटा माइनस लॉग 10 किसके इक्वल होता है आप लोग मुझे बताएं माइनस लॉग 10 किसके इक्वल होता है। बेटा वो माइनस लॉग 10 इक्वल होता है 0 के, तो हम माइनस यहाँ पे 0 पुट कर देंगे प्लस अब हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है
माइनस लॉग 10⁻⁻7। इसको हम इस तरीके से अरेंज कर रहे थे, -0 प्लस माइनस माइनस, अब ये -7 आ जाएगा इधर, और log 10, सॉरी बेटा ये log 1 है, log 10 मैंने कह दिया, log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 10 की आगे 1 होगी, log 1 की वैल्यू 0 है। ये क्या है, log 1 है, मैंने इसे देखा नहीं था, 1.0 है, log 1 की वैल्यू क्या है 0, वो हमने 0 पुट कर दी। आगे हमारे पास जो आ जाता है माइनस लॉग 10⁻⁻7 था, -7 इधर आ गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये वाला माइनस इधर आ गया, 7 log 10, और log 10 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है माइनस लॉग, माइनस का वर्ड यूज़ कर दिया, log 10 की वैल्यू आ जाती है हमारे पास बेटा 1। So we will put the values -0, minus minus plus 7, log 10 equal to 1. So overall value will be 7. The pH of a water is 7. अब हम नेक्स्ट मूव कर जाते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे कि अगर pH की वैल्यू ये है तो pOH की वैल्यू क्या होगी। pOH भी तो प्रेजेंट है ना वाटर में, तो pOH की वैल्यू क्या होगी। सेम हम क्या करते हैं, हमने कहा था अगर H पॉजिटिव कंसनट्रेशन OH नेगेटिव के इक्वल है तो हम H पॉजिटिव इक्वल टू H पॉजिटिव कर ले किया था। सेम इसी तरह OH नेगेटिव इक्वल टू OH नेगेटिव अगर कर लें तो क्या होगा, OH नेगेटिव स्केयर हो जाएगा हमारे पास, इक्वल टू 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14। सेम उसी तरीके से करेंगे, दोनों का स्केयर रूट लेंगे, -2 इक्वल टू √ 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14, स्केयर रूट लिया, ये ख़त्म हो गया, OH माइनस आ गया, ठीक है, और हमारे पास क्या होगा 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7। अब फिर हम इसका एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग लेने पे माइनस लॉग OH नेगेटिव कंसनट्रेशन इक्वल टू माइनस लॉग 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7। सेम वैसे ही वैल्यूज पुट करने पर माइनस लॉग 1.0 प्लस माइनस लॉग 10⁻⁻7 माइनस log 1 इक्वल टू 0 प्लस माइनस माइनस -7 log 10 इक्वल टू minus plus 7 log 10 equal to 1, then the value will be 7. So we can write minus log equal to pOH. So the value of pOH will also be 7. pOH is equal to also 7. So we can say that the concentration of pH and pOH is equal in water. pH value normally varies from 0 to 14. क्यों 7 को प्लस करते हैं तो बेटा क्या होगा 14। pH और pOH को इकट्ठा करने पर क्या हमारे पास वैल्यू आ गई टोटल 14। Now we can calculate that, या we can assume that, yeah, we will have a solution of this, that we will consider it like that. So the sum of pH and pOH of the solution is always 14 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि जो हमारे पास pH और pOH का जो सोल्यूशन है उसकी जो हमारे पास वैल्यू है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो क्या है ऑलवेज 14 होगी, दोनों की इक्वल होगी 7 करके। जिस तरह यहाँ पे एक मैं स्केल आपको दिखा रही हूँ जिसमें pH और pOH की वैल्यूज़ हैं। अगर हम इस स्केल को देखें बेटा तो इसमें 0 से 6 तक की जो वैल्यू है वो शो करती है pH स्ट्रॉन्ग एसिडिक सोल्यूशन को। अगर तो हमारे पास pH की वैल्यू 0 से 6 तक है तो हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिडिक सोल्यूशन है। अगर pH की वैल्यू 7 है तो बेटा हम उसे कहते हैं न्यूट्रल सोल्यूशन। अगर हमारे पास pH की वैल्यू उससे ऑनवर्ड है 8 to 14 आती है तो हम उसे क्या कहते हैं, वीक एसिडिक। जबकि बेसिक के केस में क्या है, ऑपोजिट है। अगर pOH की वैल्यू 14 to 8 है तो हम उसे कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेसिक। अगर उसकी वैल्यू 7 है तो उसे हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल। अगर उसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास 6 से 0 तक तो हम उसे क्या कहेंगे, वीक बेसिक।
मीन्स अगर हम कहें इसे इस तरीके से, अगर 0 to 6 वैल्यू है तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा सोल्यूशन और वीक बेसिक होगा, और अगर वो 7 पे है तो दोनों टाइम में मतलब ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है। अगर हम वैल्यू लें 8 to 14 तो वो वीक एसिडिक इन नेचर होगा जबकि स्ट्रॉन्ग बेसिक इन नेचर होगा। तो हम क्या इससे कंक्लूजन निकालते हैं, अगर pH 7 है तो न्यूट्रल है, अगर pH लेस देन 7 है तो एसिडिक है, अगर pH ग्रेटर देन 7 है तो बेसिक है, एंड इफ़ द pH प्लस POH इक्वल देन द वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0 to 14। बेटा यूजेस ऑफ नेक्स्ट हमारे पास यूजेस आ जाते हैं पीएच स्केल के। फर्स्ट ऑफ ऑल पीएच स्केल को हम एसिडिक और बेसिक जो सॉल्यूशंस हैं उनकी नेचर को डिटरमिन करने के लिए यूज़ करते हैं। सेकंड वन, हम इन्हें मेडिसिन में यूज़ करते हैं। जिस तरह हमने किसी भी जगह पे अगर बैक्टीरिया वगैरह ग्रो करवाने हों तो वहाँ पे हम पीएच की किसी भी सॉल्यूशन की कंसनट्रेशन में H पॉजिटिव आयन जो हैं उनको इक्वल रखने के लिए या उन्हें मेंटेन करने के लिए पीएच वैल्यू को यूज़ करते हैं। मतलब हम पीएच स्केल के ज़रिए से किसी भी सॉल्यूशन की जो पीएच है उसे मेंटेन कर सकते हैं। फिर हम पीएच सॉल्यूशंस को हम यूज़ करते हैं या हम सॉल्यूशंस प्रिपेयर करते हैं डिफरेंट बायोलॉजिकल रिएक्शंस के लिए। जिस तरह अगर हमने कोई रिएक्शन करवाना है तो उसमें पीएच को मेंटेन किया जाता है ताकि जो हमारे पास जो कंपाउंड बन रहा है वो उसकी जो मेन प्रोडक्ट है वही ऑब्टेन हो, कोई दूसरा प्रोडक्ट ऑब्टेन ना हो सके। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेटा। अल्लाह हाफिज़।